Hello, welcome to online learning class. Today we discuss about chapter number 1, Vista School, the third level, written by Jack Finney. In last video we discussed about summary. The first two pages we discussed, read and explain the meaning of the words. Now, page number 4. There were brass spittoons on the floor, and across the station a glint of light catch my eye. A man was pulling a gold watch from his waist pocket. Waist pocket meaning small pocket. Okay. Spittoon का मीनिंग यहाँ पे मैंने लिखा है रिसेप्टेकल फॉर स्पिट, यानी हम ओपन स्पेस के अंदर जो वहाँ पे हम थूकते हैं, थूकना व जहाँ पे हम बाहर की साइड जो जगह होती है वहाँ पे हम स्पिट करते हैं। और उसी टाइम जो एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पे ये जो चार्ली है वो उसकी आंखों में ये जो लाइट की जो रोशनी है वो उसकी आंखों में कैचअप कर रही है। He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. Frowned का मीनिंग यहाँ लिखा है facial expression of displeasure। तो उसने जो भी देखा उस वॉच को, तो उसको वो वॉच पसंद नहीं था। He wore a dirt-bag hat, derby hat and head band is round with narrow brim. Okay, ऐसे हेड उसने पहनी हुई थी। ओके, ब्रिम का मतलब कि आउटसाइड जो पार्ट होता है, जैसे कि आउटर साइड पार्ट जो नियर होता है उसे एक बात करती है राउंड टू नेरो ब्रिम। A black or button suit with teeny lapels, and he had a big black hand labor mustache। हैंड लेबर मुस्टाच यानी जिसको वो उसकी जो मुस्टाच जो होती है, उसकी जो मुछ जो होती है वो मोड़ सके। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. I never saw many beards, sideburns, and fancy moustaches in my life. A woman walked into the train gate. She wore a dress with leather button sleeves and skirt to the top of her high bottom shoes. Okay? यहाँ पे बटन स्लीव्स यानी जो सीट के जो हेयर होते हैं उसी के अंदर से जो भी क्लोथ बनते हैं ऐसे क्लोथ। ओके, तो वुमेन जो थी वो भी उसी टाइम ट्रेन गेट से वो वॉकिंग कर रही थी। और ये जो इस जगह की वो बात करें कि थर्ड लेवल पे क्या क्या वो ऑब्जर्व कर रहा है, उसने क्या क्या देखा, उसी की वो बात कर रहे हैं। Back of her, out on the tracks, I catch a glimpse of locomotive. लोकोमोटिव एक इंजन है जो रेलवे इंजन होता है। A very small figure gives a locomotive with a funnel shaped step. Okay, gives a locomotive दोनों साथ में होता है जिसके अंदर फ्यूनल भरा हुआ होता है और वो जो शेप जो बता है उसी की वो बात कर रहे हैं। एंड देन आई नो, उसके बाद उसको बताते हैं कि क्या हुआ। 2 minutes here, I walked over to Newsboy and glanced at the stack of paper at his feet. It was the world, and the world has not been published for years. तो जब वो बाहर की तरफ जा रहा था तो उसने एक न्यूज़पेपर बॉय उसने देखा। उसके
न्यूज़पेपर, ये जो न्यूज़पेपर जो पढ़ा था उस न्यूज़पेपर को वो दिखता है और उस न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड। आप यहाँ पे पिक्चर के अंदर देख रहे होंगे पेज नंबर 4, जहाँ पे न्यूज़पेपर का जो पिक्चर आपको दिया गया है द वर्ल्ड। तो ऐसे द वर्ल्ड करके जो न्यूज़पेपर था डेट टाइम वो पब्लिश होता था। The lead story said something about President Cleveland. Okay? तो उसी टाइम में जो प्रेसिडेंट की स्टोरी जो थी वो न्यूज़पेपर के अंदर लीड करते थे। ये जो क्लेवलैंड है वो एक लार्जेस्ट सिटी ऑफ ओहियो करके जो कि सिटी है उसी के अंदर एक क्लेवलैंड करके सिटी है, उसी का नाम है क्लेवलैंड। I have found that film scenes in the public library files and it was printed June 11, 1894. At that time, the newspaper was published in July 1894. I turned toward the ticket windows knowing that here on the third level at Grand Center, I could buy ticket there to take to Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. In the year 1894, and I wanted two tickets to Gettysburg, Illinois. The Charlie want to need two tickets for his going to Gettysburg. Gettysburg. That's why Charlie want to buy two tickets. One is his wife Louisa and second is for him. Have you ever been there? It is wonderful town still, with big old frame house, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the street. तो गर्ल्सबर्ग सिटी की वो बात कर रहे थे, वो सिटी कैसी है, तो उसी सिटी की वो बात करके वो बहुत ही अद्भुत जो वंडरफुल सिटी के बारे में बता रहे हैं, जहाँ पे बिग हाउस है, बिग लार्जेस्ट लॉन है, ट्रेमेंडस ट्रीज मीन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी लार्ज ऐसे ट्री होते हैं, जिसकी ट्री की जो ब्रांच है वो बहुत ही ऊंचाई तक दिख रही है। And in 1894, summer evening was twice as long and people sat out on their lawns. समर का जब टाइम होता था तब पीपल जो होते सब लोग उसी लॉन के जो गार्डन होता वहाँ पे वो सब लोग बैठते थे। The man smoking cigarette and talking quietly, the woman waving palm leaf hands with the flies all around in peaceful world. To be back there, the First World War still 20 years off and World War II over 40 years in the future, I wanted to take it for that. To hear the narrator said about the city of Gettysburg. तो जहाँ पे जो स्थिति की वो बात करेंगे, जहाँ पे जो लोग हैं वो स्मोकिंग करने के लिए भी आते हैं और वहाँ पे वो सिगरेट भी पीते हैं और जो पाम लीफ फैन जो होते हैं वो उसको वेविंग करने के लिए, इसको हिलाने के लिए वो वहाँ पे बैठते हैं। Here the narrator also said about the future life, the First World War and the Second World War. When the narrator said that it is happened in future, that's why he won two tickets for that. Okay? Here, 20 years after 20 years means यहाँ पे जो 1894 की वो बात कर रहे हैं और
फ्यूचर की वो बात बता रहे हैं कि मुझे बाहर सेकंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मुझे जाना है, तो उस जगह पे जाने के लिए मुझे 2 टिकट चाहिए। आफ्टर 20 ईयर्स यानी 1894 के बाद 20 ईयर यानी 1914 के अंदर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उस टाइम की बात करें, और आफ्टर 40 ईयर्स मीन्स 1944 उस टाइम पे वो सॉरी 1934, तो उस टाइम की वो बात करें कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब होने वाला है उसी टाइम की वो लेटर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज, द क्लर्क फिगर द फेयर, फेयर मीन्स जब वो टिकट खरीदने जाता है तो जो क्लर्क जो होता है टिकट विंडो वो और उसकी रेंट बताता है। He glanced at my fancy headband. Headband का मीनिंग मैंने लिखा है comes into play with the very cheap suit, shirt or ties. Okay, tie. इसके वो suit, shirt और tie पहना हुआ था. But the figure that there, and I had enough for 2 ticket. मेरे पास इतने पैसे थे जितना 2 टिकट के लिए चाहिए था. One way, but then I counted out the money and looked up. Clerk was staring at me. He nodded at the bills. क्लर्क जो था वो मेरी तरफ देख रहा था, किसकी तरफ? चार्ली की तरफ, नरेटर की तरफ। नोडेड का मतलब है कि हेड गोल गोल वो आगे की तरफ झुककर उसकी तरफ देख रहा है। Debts are not money, mister, he said, and if you are trying to skin me, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old-style bills, half again as big as the money we use nowadays. तो उसके पास जो चार्ली के पास जो भी मनी थी वो ओल्ड स्टाइल करेंसी की नोट थे and different looking. I turned away and got out fast. There is nothing nice about jail even in 1894. And Dad was dead. I left the same way I came, I suppose. Next day, during lunch hour, I drove the $100 out of the bank. Nearly all we had about old style currency that really worried my psychiatrist friend. Okay? और उसी के टाइम जब उसके पास इतने पैसे नहीं थे, ये ओल्ड टाइम की जो करेंसी जो थी उसके टाइम के बात करें कि वो $300 उसके पास उस बैंक के अंदर उसके पास पड़ा हुआ था। और ये जो ओल्ड करेंसी की जो बात करके उसको जो खरीदना चाहते थे तो रियली में क्या थी, उस साइकोट्रिक फ्रेंड जो था सैम उसको वो बहुत ही चिंता की बात थी। You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay premium. आप कोई भी व्यक्ति के पास आप ओल्ड करेंसी खरीद सकते हो, इसीलिए आपको ये जो प्रीमियम जो है वो भी आपको भरना पड़ेगा। My $300 bought less than 200 in old style this, but I did not care. It's your 13 cent dozen in 1894. तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो $300 की वो बात करेंगे कि मेरे पास जो $300 है वो $200 की ओल्ड स्टाइल जो बिल है उससे भी कम है। ओके, उसके बाद जो भी मॉडर्न टाइप की जो करेंसी है ओल्ड टाइप की जो करेंसी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, इसलिए उसके बाद जो भी करेंसी है वो उससे भी कम वैल्यूएबल है। और ये जो 13 सेंट का जो अंदर जो भी डजन एक्स जो आते थे वो भी आते हैं। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर that lead to the third level at Grand Central Station, although I have tried up enough. Loisa was pretty worried when I told her all his end.
did not want me to look for the third level anymore. And after a while I stopped, I went back to my step. But now we are both looking every weekend because now we have proved that third level is still there. चार्ली को अभी भी ऐसा लगता है कि थर्ड लेवल अभी भी उसको थर्ड लेवल में वो जी रहा है। उसको अभी भी ऐसा लगता है कि मैं थर्ड लेवल में जी रहा हूँ, मैं थर्ड लेवल में जाके आया हूँ। My friend Sam went disappear. उसका जो फ्रेंड होता है सैम वो कहीं गुम हो जाता है। Nobody know where, कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ गया। But I sort of suspect because Sam is city boy. उसको ऐसा डाउट लगा कि सैम जो है वो सिटी बॉय है, इसलिए वो कहीं घूमने के लिए गया है। और ये जो गर्ल्स बन करके जो सिटी सिटी जो थी उसी सिटी के अंदर वो शायद घूमने गया है, क्योंकि वो इतने ब्यूटीफुल सुंदर वंडरफुल सिटी जो थी उसके कारण वो बाहर घूमना चाहता है। And I used to tell him about girls' work. I went to school there. चार्ली ने उसको बताया था सैम को कि गर्ल्स वर्क के जो स्कूल जो स्कूल के अंदर वो स्टडी कर रहा था उसी स्कूल के बारे में उसने बताया, इसलिए शायद वो उसी स्कूल के अंदर वो गया। And he always said he liked the sound of plays. उसको ऐसा साउंड भी पसंद होता है कि जहाँ पे वो रहता है। And that's where he is all right in 1894. इसलिए वो सब कुछ उसको डाउट होता है, उसको समझ में आ जाता है। तो इसलिए नरेटर वो सब बातें समझ जाता है और बोलता है कि all right. Because one night, fussing with my stamp collection, I found. Where do you know what first a cover is? Okay? तो उसी टाइम पे जो स्टैम्प कलेक्शन की जो बात करते थे उसने फाइंड आउट किया कि फर्स्ट डे कवर क्या है। तो वो बता दें कि क्या वो फर्स्ट डे कवर क्या होता है उसके बारे में बता रहा। फर्स्ट डे कवर इज व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इश्यू। फर्स्ट डे कवर क्या है कि जब ये जो न्यू स्टैम्प जब इश्यू होता है तो उसी को वो फर्स्ट डे कवर के अंदर वो रखते हैं। Stamp collected by some and used them to make envelope themselves in the very first day of sale. और इसको यूज करते थे फर्स्ट डे को इन्वेलप करते थे। इन्वेलप का मीनिंग है प्लेन पेपर कंटेनर फॉर अ लेटर। कि जो लेटर के लिए जो इन्वेलप जो पेपर कवर यूज करते हैं उसी के ऊपर जो स्टैम्प कवर जो स्टैम्प हम लगाते थे उसी की वो बात करें कि जो फर्स्ट डे उसको फर्स्ट डे कवर बोला जाता है। तो उसी टाइम जब फर्स्ट स्टैम्प इश्यू होता था इसलिए उसको फर्स्ट डे कवर बोला जाता है। तो पोस्ट मार्क टू द डेट, तो ये जो फर्स्ट डे कवर उसको जो प्रूफ मिला कि उसके ऊपर डेट भी लिखी थी, वो डेट भी लिखी थी, इसके कारण उसको लगता है कि वो थर्ड लेवल में वो जाते हैं, तो उसका प्रूफ उसको मिल जाता है। तो एनवेलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, इसलिए एनवेलप जो है उसको फर्स्ट डे कवर बोला जाता है। दे आर नेवर ओपन, उसको कभी भी खोला नहीं जाता था, ओपन नहीं किया जाता था। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, इसके अंदर खाली ब्लैंक पेपर उसके अंदर रखा जाता है और उसके ऊपर जो भी पेपर लगाया जाता था वो रखा जाता था, उसको संभाल के उसको कवर उसको कलेक्ट करने के लिए रखा जाता है। That night, among my oldest first day cover, I found one that should not have been there, but there it was. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg,
That's what the address of the envelope said. और एक दिन क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट डे जो कवर था उसने उसने उसको मिला, कहा पे उसके पर पे अंदर, और उसने जाके उसको मेल किया गया था। किसके मेल किया गया था? उसके जो ग्रैंड फादर जो थे उसको मेल किया गया था। और उसी के अंदर जो गर्ल्स के अंदर जो भी गर्ल होता है उसी गर्ल के अंदर ये जो मेल उसको मिला था। और ये जो एड्रेस जो लिखा था वो इनवेलप के अंदर लिखा था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। और उसी के टाइम जो डेट थी वो डेट कौन सी थी? जुलाई 1894। The postmark showed that yet I did not remember it at all. The stamp was sent the ground with picture of President Garfield. Okay? तो जहाँ पे उसने जो स्टैम्प लगाया था वो 6 सेंट का मीनिंग है, यानी वो $100 समथिंग होता है। ओके, 6 सेंट यानी वो करेंसी टाइप है जो हमारे यहाँ पे जो पैसे के अंदर हम 100 पैसे होते हैं उसका हम 1 रुपीज़ के जो प्राइस हम मानते हैं, ऐसे 6 सेंट का मीनिंग है $100। और उसके ऊपर जो पिक्चर जो लगाया था वो प्रेसिडेंट का था, गार्फेल्ड के प्रेसिडेंट। नेचुरली when the envelope came to Grandland in the mail, it went right into the collection and stayed there till I took it out and opened it। जब मेरे अंदर जब मैंने उसने ओपन किया तो उसके अंदर कुछ लिखा था। The paper inside was not black, it read। जो पेपर के अंदर जो भी लिखा था वो ब्लैक नहीं था, लेकिन उसके अंदर कुछ लिखा हुआ। जो भी लेटर के अंदर लिखा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम रीड करते हैं। फर्स्ट एड्रेस लिखा है 941 विलार्ड स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894। तो उसी की टाइम की वो डेट लिखी और एड्रेस की लिखा है, और चार्ली को ये मेल मिला है। I got to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. And Charlie, it is true. I found that her level. I have been here 2 weeks, and right now, down the street there is someone is playing a piano. Okay, तो उसने बोला कि मैंने फाइंड आउट किया कि थर्ड लेवल है, और कोई भी लोग वहाँ पे क्या करें, पियानो बजा रहे हैं। And they are all out on the front porch singing Nelly up. And I am invited over for lemons. Come on, Pep, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It is worth it, believe me। तो लोइसा और चार्ली का उसको बुलाते हैं, वो उसकी तरफ देख रहा है, वो फाइंड आउट कि थर्ड लेवल को बिलीव करना है, वो हमारे लिए उनकी नहीं। द नोट इज साइन शाम ने ये जो मेल जो सेंड किया था और उसने वो नीचे साइन किया। तो वही बताते हैं कि जो आपको जो थर्ड लेवल की जो बात बता रहे हैं वो रियल में नहीं है। तो इसलिए वो शाम बता रहे हैं कि ये जो आप थर्ड लेवल से वो बात कर रहे हैं वो मेरे लिए बिलीव करना, मैं बिलीव नहीं करता, ऐसा शाम बोलता है। लास्ट पैराग्राफ। At the stamp and coin store I go to, I found out that some about $800 worth of old style currency that out to set you up in nice little head. Feed and rain these days. He always said that what he really wished he could do, and it
certainly can't go there to his old business. तो उसने ये जो ओल्ड स्टैम्प की जो बात है कि जो स्टोर के ऊपर वो जाते हैं और वो फाउंड आउट करते हैं और शाम के लिए वो खरीद के आते हैं। $800 जहाँ से वो $800 खरीद के आते हैं जो ओल्ड करेंसी जो करेंसी की वो बात करते हैं। और किसी लिए वो 800 करेंसी खरीद के आते हैं शाम उसका जो फ्रेंड होता चार्ली तो वो चार्ली को ये जो बिजनेस जो था उसका उस बिजनेस को छोड़ के न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है इसलिए उसने जो एक फीड यानी ड्राई ग्रास जो वेस्ट है उसकी एंड ग्रेन बिजनेस और वो ग्रेन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। He always said that what he really wished he could do, and he certainly can't go there to his old business. और वो अपना जो old business है वो जाना अपना old business करने के लिए वो नहीं चाहता। Not in Gelsberg willingness वो वहाँ पे भी जाना नहीं चाहता। In 1894 his old business जहाँ पे उसका जो old business जो था वो old business ही वो बात करेगी जहाँ पे old business करना चाहता है। Why Sam was my psychiatrist वो अभी भी वो समझ में नहीं आया कि Sam क्यों मेरा psychiatrist था। ओके तो उसी की वो बात करता है। So, dear students, here we discuss about chapter number 1, discussion the third level. In this chapter, Charlie narrates his story about his idea, the reality and imagination. Reality क्या थी और वो क्या imagination करता था? तो उसका जो फ्रेंड जो था साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड था उसने सब रियलिटी को यहाँ पे दिखाया है और जो भी इमेजिनेशन जो चार्ली के अंदर चल रही थी वो भी बताया उसने ग्राफ सर्कल स्टेशन के अंदर उसने जो ग्राउंड लेवल उसने जो इमेजिनेशन जो देखा वो उसके अंदर बताया और उसके साथ जो वैसा जो चीज़ जो गायब थी उसने भी उसने बताया और लास्ट में जो भी जो चार्ली ने जो भी देखा वो सब मेरे करता है अपनी स्टोरी। ओके जो भी टीम जो मेन जो टीम है वो रियलिटी और जो इमेजिनेशन है और जो सेकंड जो टीम मैंने बताया थी प्लेस एंड टाइम। ओके मेन जो टीम है वो याद रखना लव सॉरी टाइम एंड प्लेस एंड सेकंड रियलिटी एंड imagination. Okay, I hope I will understand this story.